A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying or solving the paper CBSE sample paper 2021-22 which is issued by the CBSE and it is published in the month of the end of the August and the September. Okay. So as we have discussed, I think 9 to 10 questions we have discussed in the last class. So firstly we will deal with the question number 11 and then we will move to the another questions related to this chapter. Basically the sample paper, and you know very well that we have already completed whole syllabus of economics. So we have to do more and more practice basically related to the numerical, objectives question, MCQs question, that so that when we go through the final examination, so we no need to worry about how to solve the questions. Okay. So first of all we will discuss the CBSE sample paper, and after that we will select the questions of the different chapters and correct the solves more and more questions. Okay. So let's get started our today's class. Now moving to the next question, that is question number 11. So the question is saying that industrial policy resolution IPR formed the basis of the 5-year plan. So the question is industrial policy resolution formed on the basis of the which 5-year plan? Okay, किस 5-year plan पे ये based होगा? So first है that is first, second is fourth, third is second, and the next one is that is third. Okay. So all these information, all these options are given here. That is industrial policy resolution formed on the basis of fill in the blanks 5-year plan. So ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था वो किस 5-year plan पे बेस्ड है? तो आप याद करो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन that was 1956 क्या 1956. तो आपको पता है फर्स्ट 5-year plan आया था आपको 1951 से 56, सेकेंड स्टार्ट होता है 56 to 60. तो वो किस 5-year plan में आया? That is in the second year. So through this the answer आपका सही हो जाएगा. You will get 1 mark, right? Now moving to the next question. Question number 12. So question number 12 is saying occupational structure. Occupational structure refers to fill in the blank, और कह रहा है fill in the blank with correct alternative. So option 1 है
is, that is size of labor, size of labor, force in a country, size of labor, force in our country. B is number of people living in a country, number of people living in a country. Third is distribution of workforce. Distribution of workforce among different sectors of economy. Among different sectors of an economy. And the next one is nature of different occupation. Nature of different occupation. So this question is given here. That is, क्या है क्वेश्चन? The occupational structure refers. ये जो occupational structure है वो किसको कहते हैं? तो आपको याद होगा इनके फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था. हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में देख रहे थे. डैट इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, डेमोग्राफिक सेक्टर. नेक्स्ट क्या था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो इन सारे पे हम लोग ने डिफरेंट पढ़ा था. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द ऑक्यूपेशन कि कंट्री में लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं. तो इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा था. 2 पॉइंट आपका ये था कि प्री डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रीजनल वेरिएशन. प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर है उस पर ज़्यादातर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर. और रीजनल वेरिएशन मीन्स बहुत सारे रीजन ऐसे थे जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था और कुछ में ऑक्यूपेशन ज़्यादा थी लोगों को और कुछ सेक्टर्स में ऐसे थे स्टिल दे पीपल आर अनएम्प्लॉयड. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यही होता है कि डिफरेंट सेक्टर्स में हाउ मेनी पीपल आर एंगेज एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर गेट एम्प्लॉयड. ओके, तो इसमें कह रहा है साइज ऑफ लेबर फोर्स, ये नहीं होगा. नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, ये भी नहीं है. वो तो सारा लोग डेमोग्राफिक में सारा पॉपुलेशन से रिलेटेड करते हैं. फिर है नेचर ऑफ द डिफरेंट ऑक्यूपेशन का डिफरेंट नेचर कैसा, इसकी बात नहीं करते हैं. हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो 12C इज द राइट आंसर. So we will get the 1 mark. Okay. So option 3rd is the correct answer. That is distribution of workforce among the different sectors of the economy. Okay. So moving to the next question. That is question number 13. That is so the question number 13 is, here is the fill in the blank. Okay, so is the portion of the agricultural produce which is sold
by the farmers after meeting their self-consumption requirement. Self-consumption requirement. Okay. So following options are given there. Trade surplus, B is marketable surplus, third is producer surplus, okay, and the next one is consumer surplus. Right? So this question is given. So the question is saying that the fill in the blanks is the portion. ये क्या है? पोर्शन है. किसका पोर्शन? दैट इज पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ठीक है, जो एग्रीकल्चरल का प्रोड्यूस है विच इज सोल्ड इन द मार्केट. जो मार्केट में क्या होता है? सोल्ड होता है बाय द फार्मर्स. फार्मर्स सोल्ड करते हैं आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट. ठीक है, उनके सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट के बाद वो लोग जो भी क्या करते हैं, उसको सोल्ड कर देते हैं मार्केट में. फार्मर्स जो भी उसको सोल्ड कर देते हैं मार्केट में, दैट इज कॉल्ड व्हाट. हम लोगों ने इसको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पहले क्या था, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्री फॉर आर फूड, फॉर दी फूड सफिशिएंसी. बट आफ्टर दी इंडिपेंडेंट हम लोग क्या थे, थोड़ा सा फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करना लगे. फिर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद चीज़ें क्या हुई, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए, सेल्फ रिलायंस हुए. ठीक है, सेल्फ रिलायंस हुए, जिसमें हम क्या थे, जो हमारी डिपेंडेंसी थी अदर कंट्री पे वो क्या होती गई, कम होती गई. ठीक है, सो अब क्या था, अब हम लोग का ये था कि अब हम लोग को क्या करना था, इसको क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप से हम लोग कैश क्रॉप की ओर कन्वर्ट हो गए. इस स्टेटमेंट को बोलते हैं दैट इज दी मार्केटेबल सरप्लस. सो आंसर बी इज द राइट. फ्रॉम दिस यू विल गेट वन मोर मार्क. अगर करेक्ट कर दिया, आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग सब लोग क्लास में. मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं. मार्केटेबल सरप्लस इज द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट by the farmers after meeting their self consumption requirement. ठीक है, अपनी सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट के बाद जो भी मिलता है वो सोल्ड कर देते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. सो वेयर इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली and choose the color and choose the
correct alternatives given below. ठीक है, choose the correct alternatives given below. Statement 1. Poverty in India is defined in terms of monetary value of the minimum nutritional requirement of an individual in a day. ठीक है, कह रहा है कि पॉवर्टी लाइन इन इंडिया में है, वो डिफाइंड होती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे. स्टेटमेंट 2 है, Statement 2 is the definition of the poverty line. The definition of poverty line in monetary terms has not changed over the years. ठीक है, ओके. अब इसमें ऑल्टरनेटिव्स दे रखा है. Alternative 1 is both these statements are true. Both the statements are true. Both the statements are false. Third is statement 1 is true and statement 2 is false. It will A, B, C and D. Statement 2 is true and statement 1 is false. ओके, सो ये आपके पास सारे ऑप्शंस दे रखे हैं. इसमें क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो ये स्टेटमेंट दिया है उसको हमें देखना है और इसकी करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि पॉवर्टी जो इंडिया में है वो डिफाइन किस में हुई है, मॉनेटरी वैल्यू में हुई है. मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशनल, जितनी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, जो कैलोरी में हम लोग ने देखा था, दैट इज 2400 कैलोरी किसको चाहिए, रूरल पीपल को, और 2100 कैलोरी किसको चाहिए, अर्बन एरिया को. ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ी थी. फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है
कि द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है वो क्या हुई है, काफ़ी टाइम से वो उसको अपग्रेड हैज़ नॉट चेंज, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में उसको एक्सचेंज नहीं किया गया, बट दिस वन इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि पॉवर्टी लाइन को क्या है कि मॉनेटरी टर्म में भी किया गया है कि अराउंड 1000 अर्बन पीपल को है और 800 अराउंड कितना है रूरल पीपल को है। तो ये कह रहा है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुई है। तो फर्स्ट तो हमें पता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैलोरी के फॉर्म में हुआ था 2400 कैलोरी फॉर द रूरल पीपल एंड 2100 कैलोरी फॉर द अर्बन पीपल, तो ये सही हो गया, बट सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो C will be the correct answer and you will get the 1 more marks. Okay. Now move to the another question, question number 15. Okay, so before this we can study the question number 16 first. पहले हम लोग 16 कर लेते हैं, then after that we will move to the question number 15. Question number 16. Question number 16 है before the advent, and advent means arrival of green revolution in 1960s India was primarily dependent on for the supply of food grains, for the supply of food grains, ठीक है, कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ व्हाट, एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में, जो 1916 में एडवेंट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन 1916 में, इंडिया वॉज प्राइमरली डिपेंडेंट, इंडिया किस पे डिपेंडेंट थी, फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स, की सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स पे इंडिया किस कंट्री पे क्या थी, वो डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहला दैट ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको बोलते हैं यूएसए। बी इज ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। C option is Mexico and the D option is USSR, Union of Soviet Socialist Republics।
ठीक है, USSR। इसमें कह रहा है कि बिफोर द एडवेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवेंट के पहले इंडिया किस पे प्राइमरली डिपेंडेंट थी, किस कंट्री पे डिपेंडेंट थी फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स? सो इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज A. Okay, so from this you will also get the one more